یہ کہانی ایک شخص کی ہے جو خزانے کی تلاش میں ایک پراسرار جزیرے پر پھنس گیا۔ اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس جزیرے پر ایک قدیم راز چھپا ہوا ہے جو کسی کو بھی جیتنے نہیں دیتا۔ جیسے ہی وہ خزانے کے قریب پہنچا، ایک عجیب سی آواز سنائی دی اور زمین میں ہلچل مچ گئی۔ اچانک سرنگ کا دروازہ بند ہو گیا اور ان کے سامنے ایک سایہ نمودار ہوا جو اس کے لیے زندگی اور موت کا سوال بن چکا تھا۔ کیا وہ اس جزیرے سے زندہ واپس آ پائے گا؟ جاننے کے لیے اس غیر معمولی سفر کو مکمل دیکھیں اور خود جانیں۔ ایک دن میں ایک کباڑیے کی دکان پر پرانی کتابوں کی ورق گردانی کر رہا تھا کہ ایک پرانی کتاب میں ایک بوسیدہ سا کاغذ ملا۔ اس پر عجیب و غریب آڑی ترچھی لکیریں اور کسی نامعلوم زبان میں الفاظ لکھے تھے۔ میں نے کتاب خریدی اور فوراً گھر آ گیا، لیکن جب ان لفظوں اور نشانات کا مطلب نہ سمجھ سکا تو اپنے دوستوں کو دکھایا۔ میرا دوست اسامہ کاغذ کو غور سے دیکھنے لگا، پھر جوش سے بولا، بلال، یہ تو خزانے کا نقشہ لگ رہا ہے۔ اویس نے حیرت سے پوچھا، مسٹر ماہر نقشہ جات، یہ خزانہ کہاں چھپا ہے؟ اسامہ نے کہا، یہ خزانہ ایک دوردراز جزیرے پر چھپا ہے، وہاں ایک غار ہے جس میں خزانہ دفن ہے۔ اگر تم تیار ہو تو میں تمہیں وہاں لے جا سکتا ہوں۔ ہم سب نے بے تابی سے ہاں کر دی۔ ہم نے جلدی جلدی کھانے پینے کا سامان، کچھ اوزار اور ضروری چیزیں اکٹھی کی اور ایک بڑی ناؤ کا انتظام کیا۔ ناؤ کے ذریعے ہم سمندر کا سفر شروع کر چکے تھے۔ اسامہ ہماری مہم کا لیڈر بن گیا اور اویس اس کے ساتھ نقشہ دیکھ کر راستہ بتا رہا تھا۔ کئی گھنٹے سمندر کی موجوں سے لڑتے ہوئے ہم آخرکار اس پراسرار جزیرے کے قریب پہنچے۔ اسامہ نے کہا، بس آگے یہ جزیرہ ہے، سب تیار ہو جاؤ، ہمیں ساحل پر اترنا ہوگا۔ ہم نے سامان اٹھایا اور ناؤ ساحل پر ایک درخت کے ساتھ باندھ کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ ساحل سے آگے جنگل تھا، ہم جنگل میں داخل ہوئے اور کچھ دیر چلنے کے بعد تھکن سے نڈھال ہو گئے۔ ایک چشمے کے پاس پہنچ کر اسامہ نے کہا، چلو کچھ دیر آرام کر لو اور کھانا کھا لو۔ ہم نے دسترخوان بچھایا، خوب مزے سے کھانا کھایا اور درختوں کے سائے میں کچھ دیر لیٹ گئے۔ مگر زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اسامہ نے سب کو جگایا، دوستو، ہم یہاں سیر کرنے نہیں آئے۔ ہم نے ہنستے ہنستے سامان اٹھایا اور پھر آگے بڑھ گئے۔ آخرکار پہاڑی اور اس کے دامن میں ایک غار دکھائی دیا۔ اسامہ کی تیز نظر نے جھاڑیوں میں چھپی غار کی چوکھٹ دیکھ لی۔ ہم نے ٹارچیں جلائیں اور اندر داخل ہو گئے۔ اندھیرے سناٹے، ہڈیوں کے ڈھیر اور چھت پر لٹکتی چمگادڑوں نے ہمیں کانپنے پر مجبور کر دیا، مگر ہم ہمت کر کے آگے بڑھتے رہے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں، میں نے حیرت سے کہا۔ اسامہ نے پراعتماد لہجے میں کہا، خزانہ زمین کے نیچے ہے، کھودنا ہوگا۔ سب گھبرا گئے، لیکن خزانے کی لالچ نے ہم سب کو بے خوف بنا دیا۔ اویس نے پہلا ہتھوڑا چلایا، کچھ ہی دیر میں غار کے دہانے پر سیاہی ولا نمودار ہوا۔ دل کی دھڑکن رک گئی، وہ ایک سیاہ ریچھ تھا۔ اندھیرے میں ریچھ کی آنکھیں ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہی تھیں۔ اسامہ نے للکار کر کہا، سب پر حملہ کرو۔ میں نے بیلچہ اٹھا کر ریچھ کے سر پر مارا، ریچھ غصے میں دھاڑا۔ اویس نے ہتھوڑے سے حملہ کیا مگر پھسل گیا اور ریچھ کے شکنجے میں جا پھنسا۔ میں نے پھر وار کیا، ریچھ نے اویس کو چھوڑا اور میری طرف لپکا۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور میں ایک گڑھے میں جا گرا۔ گڑھے میں میرا پاؤں نرم ریت میں دھنس گیا، مگر میں نے اوپر سے جھانک کر دیکھا، ریچھ ہمیں ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ریت کے مٹھی بھر کر اس کے منہ پر پھینک دی۔ ریت اس کی آنکھوں اور ناک میں جا گھسی، وہ کھانسنے اور آنکھیں ملنے لگا۔ موقع غنیمت جان کر میں بھاگا، پیچھے سے دوستوں کی آواز آئی، بلال، ہم بھی آ رہے ہیں۔ ہم سب دوڑتے ہوئے غار سے نکلے، ساحل کی طرف بھاگے، ناؤ میں جا بیٹھے اور سمندر کی لہروں میں واپس چل دیے۔ اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگیں اور سمندر کی لہریں بکھرنے لگیں۔ ہم نے جلدی سے سامان سمیٹنے کی کوشش کی، مگر طوفان آ چکا تھا۔ تیز بارش، بجلی کی کڑک اور ہواؤں کے جھکڑوں نے ہماری کشتی کو ہچکولے دینا شروع کر دیے۔ پانی کی بڑی بڑی لہریں کشتی کے اندر بھرنے لگے۔ ہم نے پانی باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن طوفان تیز تھا۔ کشتی ڈولنے لگی اور ہمیں پہلی بار احساس ہوا کہ ہم کسی بڑے خطرے میں ہیں۔ اچانک ایک زوردار لہر آئی اور کشتی کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ ہم چیخے، لیکن چیخیں طوفان کی گرج میں دب گئیں۔ بلال، مضبوطی سے پکڑو، اس امنا چلایا۔
अवैस, जिंदगी की आखिरी कोशिश कर लो, मैंने चीखते हुए कहा। हम तीनों हाथों में हाथ डालकर बचने की कोशिश करते रहे, मगर कुश्ती उलट गई और हम समंदर की बेरहम लहरों में डूबने लगे। मैंने इस्मा और अवैस को आखिरी बार देखा, वो किश्ती के एक बड़े टुकड़े को पकड़े हुए थे। लेकिन मेरे साथ किस्मत कुछ और खेल रही थी। मेरा सांस रुकने लगा और मैं नींद बेहोश होने लगा। जब होश आया तो खुद को एक सुनसान वीरान जजीरे के किनारे पाया। मेरे कपड़े फटे हुए थे, हाथ जख्मी थे, जिस्म थकन से चूर था। मैंने आंख उठाकर देखा, दूर दूर तक रेत ही रेत, सूखी झाड़ियां और एक सनोटा जो कानों में सीटी बजाता था। मैंने बेयकीनी से आसपास देखा। समंदर की मौजें अभी भी शोर कर रही थीं, गोया मुझे छेड़ रही हूं। बिलाल, खुश आमदीद, अब ये जजीरा तेरा घर है। मैं लड़खड़ाते कदमों से उठा, अपने जिस्म को सहारा दिया और दुआ की कि मेरे दोस्त महफूज हों। आंखों में नमी थी, मगर दिल में एक अजीब सी ताकत जाग चुकी थी। मैं जिंदा था और शायद किस्मत ने मेरे लिए एक और मुहिम संभाल रखी थी। उसामा और अवैस को एक बड़े जहाज ने बचा लिया, लेकिन बिलाल का कुछ पता ना चला। जब बिलाल के माँ बाप और घर वालों को खबर मिली कि बिलाल की कुश्ती समंदर में डूब गई है, तो पूरे घर पर मातम का समा छा गया। बिलाल की मां सदमे से निढाल होकर बैठ गई, आंसुओं की लड़ी रुकी ही नहीं, और बिलाल का बाप खामोश होकर एक कोने में बैठा आसमान की तरफ खाली नजरों से देख रहा था। घर में कोहराम मच गया था। रिश्तेदार और मोहल्ले वाले सब जमा हो गए, लेकिन किसी के पास तसल्ली के अल्फाज ना थे। इस्मा और अवैस भी शदीद गमगीन थे। वो दोनों खुद बच गए थे, लेकिन बिलाल की जुदाई का दाग उनके दिलों पर नक्श हो चुका था। वो हर वक्त खुद को इल्जाम देते कि हम क्यों नहीं बचा सके। लोगों ने कश्तियों पर, साहिल पर, यहां तक कि समंदर की मौजों में भी बिलाल को ढूंढने की कोशिश की। मकामी मछेरों ने अपनी कश्तियां निकाली, कई दिन तक समंदर की लहरों में तलाश जारी रही, लेकिन बिलाल का कोई सुराग ना मिला। आहिस्ता आहिस्ता लोग उम्मीद हारने लगे, मगर बिलाल की मां हर दिन दुआओं में गुजारती, समंदर की तरफ देखती और बस यही कहती, मेरा बिलाल जरूर लूटेगा, वो जिंदा है। मैंने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और थके कदमों के साथ जजीरे का जायजा लेने लगा। चारों तरफ सुनसान रेत, सूखी झाड़ियां और दूर एक छोटा सा टीला नजर आ रहा था। सूरज की तेज धूप में मेरे जिस्म की तवानाई खत्म हो रही थी, लेकिन अंदर एक अजब सी हिम्मत जागी हुई थी। मैंने तय कर लिया कि यहां बैठकर रोने या बेबस होने का कोई फायदा नहीं, मुझे अपने लिए कुछ करना होगा। मैं टीले की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं इसके करीब पहुंचा, मेरे कदमों के नीचे की जमीन ने हल्की सी कपकपाहट की। मैं ठिठक गया। ये क्या था, मैंने हैरानी से सोचा। दोबारा जोर से पाँव मारा, जमीन ने एक बार फिर हल्की सी गूंज पैदा की, जैसे नीचे कोई खोखला खला हो। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने झुककर जमीन को खोदना शुरू किया। जमीन के नीचे कुछ सख्त चीजें थीं, लकड़ी के तख्ते। मेरी आंखों में उम्मीद की चमक जागी। इन्हें मैं शराबूर में तकरीबन 1 घंटा खोदता रहा, यहां तक कि एक पुराना तख्ता मुकम्मल तौर पर जाहिर हो गया। मैंने इसे खींचने की कोशिश की, जोर लगाते ही तख्ता हटा और नीचे एक तारीक सुराख नमूदार हुआ, जैसे कोई खुफिया सुरंग या पुरानी गार। नीचे ठंडी हवा का एक झोंका आया। मैंने फौरन अपनी जेब में मौजूद छोटे से लाइटर को निकाला और रोशनी की। नीचे पत्थर की सीढ़ियां दिखाई दी, जो किसी नामालूम मकाम की तरफ जा रही थीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या यह खजाने का रास्ता है? आइए कोई पुरानी बहरी जहाज की पनागाह है? हजारों सवाल जहन में गर्दिश करने लगे, मगर तजस्सुस का जज्बा खौफ पर गालिब आ गया। मैंने हिम्मत की सांस खींची और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर कदम पर दिल की धड़कन मजीद तेज होती जा रही थी और दिमाग में हर मुमकिन खतरे का तसव्वुर गूंज रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता ना था। जब मैं इस ज़ेरे ज़मीन गार में पहुंचा तो वहां की तारीकी और खामोशी दिल दहला देने वाली थी। लाइटर की मध्यम रोशनी में मुझे दीवारों पर अजीब व गरीब तस्वीरें और खाली संदूक नजर आए। मैं धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ा, तभी अचानक एक खनकारने की आवाज आई। मैं फौरन रुक गया। आवाज की समत देखा तो गार के कोने में एक साया बैठा था, जिसका चारा नुमाया नहीं था। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ आया। कौन हो तुम? मैंने हैरानी से पूछा। साये ने भारी पुरसुकून आवाज में कहा, मैं इस जजीरे का निगहबान हूं, खजाने का मुहाफिज।
यहाँ जो भी आया वो वापस ना जा सका। लेकिन तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम 3 सवालों का सही जवाब दोगे तो जितना चाहो खजाना ले जा सकते हो। लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुमसे पहले आने वालों का हुआ। मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई, मगर मैंने खुद को संभाला। ये पूछो सवाल, मैं तैयार हूं, मैंने हिम्मत जाटती हुए कहा। साए की आंखों में चमक आई। इसने पहला सवाल किया, वो क्या चीज है जो तुम्हारी है मगर दूसरे लोग इसका तुमसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? मैंने पलक झपकने लगे, सोच में डूब गया और फिर याद आया बचपन में सुना हुआ पहेली का जवाब। मैंने कहा, मेरा नाम। साए ने सर हिलाया, मुस्करा कर कहा, सही। फिर इसने दूसरा सवाल किया, वो क्या है जो टूट जाए तो आवाज नहीं करती? मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। मैंने जमीन पर नजरें जमा कर सोचा। अचानक जवाब जहन में आया, खामोशी। साए ने जोरदार कहकहा लगाया, बहुत खूब। तीसरा और आखिरी सवाल साए ने कदरे संजीदा लहजे में पूछा। एक बादशाह के पास एक कैदी था। इसे कहा गया कि अगर वो सच बोलेगा तो इसे जहर दिया जाएगा और अगर झूठ बोलेगा तो इसे फांसी दी जाएगी। कैदी ने क्या कहा कि वो बच गया। मेरे हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीना बहने लगा। मैंने आंखें बंद की और दिमाग पर जोर डाला। फिर धीरे से बोला, इसने कहा मुझे फांसी दी जाएगी। साए की आंखों में हैरानी और फिर खुशी की चमक आई। इसने कहकहा लगाया और कहा, शाबाश लड़के, तुमने वो कर दिखाया जो कई सदियों में कोई ना कर सका। जाओ, खजाना तुम्हारा है। इसने एक खुफिया दरवाजे की तरफ इशारा किया जो आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा। अंदर चमकते हुए सोने, हीरे, मोती और कीमती जेवरात से भरी हुई संदूक नजर आए। साए ने कहा, लेकिन याद रखना, खजाने की कीमत सिर्फ दौलत नहीं, समझदारी, सब्र और हिम्मत है। खजाने के कमरे में चारों तरफ सोना, हीरे, जवाहरात चमक रहे थे, मगर मेरी नजर एक तरफ खड़ी पुरानी कुश्ती पर जा ठहरी। ये कुश्ती खासी बड़ी थी, लगता था जैसे सदियों से यहीं खड़ी हो, खजाने की हिफाजत कर रही हो। मैंने फौरन एक मजबूत सा संदूक भरा, सोने के सिक्कों, मोतियों और हीरे जवाहरात से। वो संदूक मैंने कुश्ती में रखा। जैसे ही संदूक कुश्ती में रखा, एक जोरदार आवाज आई, कड़क। मेरे पीछे एक दरवाजा खिल गया और हल्की हल्की रोशनी अंदर आने लगी। फिर कुश्ती में अचानक हरकत हुई और वो पानी की एक खुफिया सुरंग में चलने लगी। मेरा दिल खुशी और हैरत से धड़कने लगा। मैंने कुश्ती की पतवार संभाली और इसे संभाल कर ले जाने लगा। जैसे ही सुरंग खत्म हुई, मैं समंदर के खिले पानी में निकल आया। समंदर की ताज़ा हवा मेरे चेहरे से टकराई और मैं खुशी से झूमने लगा। मैं बच गया, मैं कामयाब हो गया। मैंने कुश्ती को अपने गांव की समत मोड़ा। जैसे जैसे मैं साहिल के करीब पहुंचा, वहां लोग हैरत और बेयकीनी के आलम में मुझे देखने लगे। जिन लोगों को यकीन था कि मैं समंदर में डूब चुका हूं, वो अब अपनी आंखों पर हाथ फेर कर देख रहे थे। जब मैं साहिल पर उतरा, मेरी मां भागती हुई आई और मुझे गले लगा लिया। इसकी आंखों में खुशी और शुक्र के आंसू थे। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ लोग जमा हो गए। जब मैंने खजाने का भरा हुआ संदूक कुश्ती से निकाला और सबके सामने रखा, तो हर चेहरा खुशी से दमक उठा। देखो, हमारा बेटा ना सिर्फ बच आया बल्कि हमारे लिए खजाना भी लाया है, मेरी मां ने फख्र से कहा, और पूरे गांव में जश्न का समा बन गया। मेरे दोस्त मुझे जिंदा देखकर बहुत खुश थे। हर घर में खुशी की बातें होने लगे और मेरा यकीन, मेरी हिम्मत और मेरे ख्वाब सब की ज़बान पर थे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जिंदगी में मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना एक मामूली बात नहीं होती, लेकिन अगर हम हिम्मत, अक्ल और साबित कदमी से काम लें तो हम किसी भी मुश्किल को उबूर कर सकते हैं। बिलाल ने जो मेहनत और अज़्म दिखाया, वो हमें सिखाता है कि जिंदगी के सफर में जो भी रुकावटें आएं, उनका मुकाबला करना जरूरी होता है। इसके अलावा हमें हमेशा अपने ख्वाबों के पीछे चलना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। बिलाल ने न सिर्फ अपने लिए खजाना तलाश किया बल्कि अपने खानदान और गांव के लिए खुशियां भी लेकर आया, जो इस बात का सबूत है कि अगर आपकी नीयत साफ हो और आप सही राह पर हो तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो बराह करम इसे लाइक करें
اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، کیونکہ آپ کی محبت اور حوصلہ افزائی ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ شکریہ۔